Assalamu alaikum. Greetings to everyone. My name is Syed Sameer Alvi. Today I am going to present you about the idea of Cartesian scale of civilization. So let's proceed further. Since the start of astronomy, or you can say the dawn of astronomy, when people started to thought that there could be an other mankind or any other being that could be existed beyond the sky limits. But at the start of 16th century, the science made enough revolution to let the people know about the technology and what basically science is. There were great like Copernicus, Galileo, and after them, from Newtonian physics to modern physics of Einstein. The science varied from lower to scale to larger scale. To make this easy, he made a scale, a Russian scientist known as Kardashev scale of civilization to let the people know about in which scale they existed. Please proceed further. Next, please. Yes. A question would arise in listener of my presentation, ke bhai, what basically civilization is. So initially it can be defined as an advanced state of society in which a high level of culture, science, industry and government has been reached. Next, these are the 7 points. For a society to be considered as a civilization, it must fulfill these 7 requirements. Otherwise, the society will not be considered as civilization. They should be having stable food supply. उनके पास इतना food होना चाहिए कि भाई food supply means there is enough food for all of the people for all of the time. There could be even surplus or extra amount of food. Number two, social structure. Social structure which is defined as stable arrangement of institution by human being in a society to live together. Number three, system of government. System of government would be defined as strong compliance with safety, government with robust regulatory power, appropriate management, and board structures. Strong management is essential part of system of government. Number four, religious system. Religion अम्मी is an organized collection of थोड़े तो beliefs, दरवाजा बंद कर दो। cultural system, and worldviews that relate humanity to an order of existence. Number five, highly developed culture. The term civilization has still another meaning since each culture has peculiar features of its own. And since some cultures are more highly developed than others, we can say that civilization is a superior culture. Number six, advances in technology. Advanced technology refers, in general, you can say a high technology, like advanced technology may also refer to advanced stream technology, missiles, atomic bomb, SLVs, satellites, machines, and you can say software are also a phase of advanced technology. Highly developed written languages, number seven. The written languages were came into existing in 3000 BC, and we can confirm that people before 3000 BC cannot be regarded as civilization. So these are the 7 point a society must fulfill to be known as civilization. So the person you are seeing at the screen right now is Nikola Kardashev. He was the person who proposed or present the idea of Kardashev scale of civilization in 1964. He initially classified the civilization into three main types from type 1 to type 3 and four extended type 0, type 4, type 5 and type omega were added later. Next. So as you can see, it's like a chart or tree. You can say Kardashev scale further divided into two category main types. It has further more three types and extended types further have four types. Next, please. टाइप वन सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जो अपने होस्ट प्लेनेट की 100% एनर्जी को हार्वेस्ट कर सके. अ सिविलाइजेशन विच कैन हार्वेस्ट all of the energy of its host planet
would be defined as type 1 civilization. Next, a type 1 civilization can also be defined as civilization which would have complete control over their host planet, like I have said in the last slide. The civilization which could harvest all of the energy a host planet is providing to them, which means if human society ever reaches this level, then they will potentially be able to control all the volcanic eruptions, all even earthquake. They would be able to control even earthquake if a civilization reaches to the level of type 1. Next, now I would like to hand over my presentation to Hansila to proceed further. Thank you. So type 2 civilization is a civilization which can harvest all the energy of its host star. In our case, the host star is the sun. It could be it could be a different star for the different civilizations. Next, as you can see in this simulation, the process to harvest the energy of our host star is building a Dyson sphere around the host planet. This is a mega structure which harvests the energy of our host star, and uh, it uh, it gives the energy to the planets in need. The idea was given by Olav Stepliden. Next, type three. Type three civilization is the civilization which has a complete control over its host galaxy. It can harvest all the energy of the all stars of the galaxy and even the black hole. But there's a cheat code that if we could harvest the energy of the supermassive black hole, which is in center of a galaxy, there won't be a need to harvest the all the energy of all the stars. The process the process to harvest the energy of the black hole is that since the black hole are spinning because when a really massive star dies, because when the really massive star dies, it becomes a black hole. And the fundamental property of a universe is that when the thing that is spinning will keep on spinning, we call this angular momentum, and it must be conserved. So as the mass goes down, the angular velocity will go up, and then when the core of the star shrinks, the mass will go down, and the angular velocity will increase further and further. And when it reaches the state when it becomes a black hole, the angular velocity will be inconceivably fast. So a spinning black hole is can be defined as same as the static black hole. It has an event horizon and a singularity. But singularity, but in the rotating case, but singularity is a point with no surface area concentrates all the mass of the black hole. But point cannot rotate, so a singularity becomes a ringularity. Ringularity is now ringularity morphs the space-time and creates a different region called ergosphere. Now this region is very this is the ergosphere which envelops the black hole. Inside the ergosphere, the black hole gives all of it transfers all of its rotational energy which enters this region. Next, this is a process called Penrose process. If we bring a rocket and give the black hole some mass energy, it will give some of its rotation energy and slows down a bit. But there's another way. But there's another way we can steal the energy from a black hole. We can envelop the black hole with a structure with a simple mirror, just like the Dyson sphere. But the Dyson sphere is much more complicated. And in the case of black hole, the black holes are more compact. So we can build a mirror around the black hole and open some of its window and shoot some electromagnetic waves. When we shoot the electromagnetic waves, some of the waves will pass the event horizon,
but most of the electromagnetic waves will sloshes around the black hole and gets amplified more gets amplified exponentially. But as it amplifies the energy of the waves will grow exponentially. So if we don't, so we have to open the mirror and consume the energy. If we don't do it, it would become a bomb called the black hole bomb. Next, now Mustaqim is going to take over from here. Thank you. Assalamu alaikum. आवाज आ रही है? Type 0. When we try to apply this scale on human civilization, we found that our civilization is not even at the lowest point of it. So, to rank our civilization, an extended type was introduced under the name of Type 0. Subtype were also introduced with it so that we can understand how close a civilization is to achieve the milestone of energy consumption. ये बयान करने से पहले सबसे पहले इंट्रो सन 1964 में रशियन एस्ट्रोनॉमर थे निकोली कार्दिशेव. हमारे सामने उन्होंने एक स्केल को मुतारिफ कराया. उनके मुताबिक किसी भी सिविलाइजेशन कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है उसको नापने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उस सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजप्शन को मेजर किया जाए. तभी हम बता सकते हैं कि वो किस स्केल पर एग्जिस्ट करता है और उसी स्केल को कार्दिशेव स्केल हम कहते हैं. और टाइप 3 स्केल बयान करने के बाद इस प्लेनेट की हमारी जो अर्थ है इस प्लेनेट की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना एक और टाइप दिया जाए. उसको हमने टाइप 0 में कंसीडर किया क्योंकि टाइप 1 में हम बिल्कुल ही फिट नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी कंजप्शन थी लगभग 10 की पावर 16 वाट जो सूरज से हमें हासिल होती है. लेकिन हम इतनी एनर्जी को हम हासिल नहीं कर सकते इसलिए हम टाइप 1 पे फिट नहीं होते हैं. तो हमने टाइप 0 को एक्सक्लूड किया और टाइप 0 में ही हम लोग एग्जिस्ट करते हैं. और क्योंकि जो हमारी जो इस प्लेनेट की जो एनर्जी कंजप्शन है वो है 0.72 और इससे अगर पास में चले जाएं जो हमारे आबाओ अजदाद थे उन्होंने उस टाइम एनर्जी की कंजप्शन बहुत ही कम थी लगभग 0.1 0.2 और उसके बाद आज के दौर में जो एनर्जी कंजप्शन है वो लगभग 0.72 पर एग्जिस्ट करती है. इसलिए हम कंसिडर किए जाते हैं टाइप 0 सिविलाइजेशन पर. नेक्स्ट, अब बात आती है टाइप 4 और टाइप 5 की. टाइप 4 एंड 5 सिविलाइजेशन आर प्रूफ्स that human imagination has no limits. These two extended types discuss the civilization which control or either all local group of galaxy which is type 4 or a supercluster of galaxy which is type 5. Currently we have no idea about the working of this civilization. मैं टाइप 4 को बयान करना चाह रहा हूँ. टाइप 4 में निकोली कार्दिशेव के मुताबिक टाइप 3 से आगे जाना तो वैसे इम्पॉसिबल था लेकिन फिर भी हमने हाइपोथेटिकल होते हुए टाइप 4 तक एक्सटेंड किया अपने स्केल को. और टाइप 4 में ये वो सिविलाइजेशन है जो हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का एनर्जी को यूज़ करती है. यानी जितनी एनर्जी गैलेक्सी से आती है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और स्टोर करने की भी सलाहियत रखती है. और हम ये सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी जो ये पूरी एनर्जी को हासिल करते होंगे. हो सकता है मैं भी पॉसिबल ये अपनी किसी भी गैलेक्सी या यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते होंगे. और टाइप 5 में जो एलियंस रहते होंगे वो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी पर अपना होल्ड होता होगा उनका और उसके साथ साथ वो एनर्जी को स्टोर और यूटिलाइज भी कर सकते होंगे. और इतनी हाई टेक्नोलॉजी आने के बाद हो सकता है मैं भी पॉसिबल ये किसी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाना ऐसे ही हो जैसे कराची से लाहौर या लाहौर से कराची जाना हो. इतनी एनर्जी को हम किसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. एनर्जी से हम काम ले सकते हैं. अब वो
उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से करते होंगे। और उसके बाद जो टाइप आती है वो है टाइप ओमेगा। टाइप ओमेगा, इस टाइप के बारे में सोचना लगभग इम्पॉसिबल है कि इस समय हम इतने हाई टेक्नोलॉजी रखते होंगे कि किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट करना या किसी भी मल्टीवर्स को क्रिएट करना या किसी भी गैलेक्सी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तमाम चीज़ों पर होल्ड उन एलियंस का होता होगा जो इतनी एनर्जी रखती होगी, और उनको हमने ओमेगा में डिफाइन किया है। और अंग्रेज़ों का ये मानना है कि हो सकता है मे भी पॉसिबल, क्योंकि हम इससे टाइप ओमेगा को हम गॉड सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि अंग्रेज़ों का मानना है कि हो सकता है मे भी पॉसिबल ये वो सिविलाइजेशन होती होगी या तो जिन्होंने खुद खुदा को पा लिया होगा नौजुबिल्ला, या तो खुद खुदा ही अपने आप को समझकर पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स पे अपना हुक्मरानी करते होंगे। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन, आई फॉरवर्ड इट टू नेक्स्ट। Assalamu alaikum. From the types explained above, it is clearly seen that the human civilization or our civilization is neither type 0 or nor type 1. So, an American astronomer, Carl Sagan, in 1980 broke the scale into subtypes, type point 1, point 2, and so on. He also gave the formula to find out the civilization number. The formula is k is equals to log base 10 p minus 6 divided by 10, where in this formula k is the type of civilization and p is the yearly consumption of power by a civilization in watts. According to this formula, our current human civilization is at 0.73 type or 0.73 number in the scale. Next. Importance. Now we can see that all the types explained in this scale, जितनी भी टाइप्स जो हैं इस स्केल में ऊपर बताई गई, ये ज़्यादातर या तो फ्यूचरिस्टिक हैं या फिर क्या नाम है फिक्शनल हैं, एक्सेप्ट टाइप 0। सो हमें इस काइंड ऑफ स्केल की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बेसिकली ये जो स्केल कादरशिव ने दिया था हमें, ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए नहीं था, ये बेसिकली एलियन सिविलाइजेशंस के लिए बनाया गया था, जो क्या नाम है हमने आज तक अभी तक डिस्कवर नहीं की थी। Well, the answer is microbiology and civilizations like our own may exist out there. They could be lying in our very solar system. Our civilization in the solar system is much easier to contact those in the vast of space. And even if we could, underdeveloped civilizations would be detectable at all. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी civilizations या हमारी जैसी और टाइप 1 या टाइप 2 की civilizations जो बेसिकली टाइप 3 और 3, 4, 5 के कंपैरिजन में इतनी छोटी civilizations हैं कि अगर पूरे इस वास्ट यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी इस पूरे वास्ट यूनिवर्स में आराम से नज़र नहीं आएगी, लेकिन टाइप 4 और 5 की टेक्नोलॉजी आराम से नज़र आ सकती है। नाउ खुबैब विल डिस्कस फर्दर मोर। तो इस तरह हमने एक स्केल पढ़ा जिसमें हम लोग एलियन सिविलाइजेशंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ऐसे स्केल पढ़ने का किसी के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशंस माइट बी लर्किंग इन आवर ओन नेबरहुड, हमारी अपनी गैलेक्सी में या हमारे करीब जो स्टार्स है वहाँ पे किस तरह की सिविलाइजेशंस रहती होंगी। तो इसका आंसर जो है रिसर्च के बाद हमने ये निकाला है कि वी माइट बी द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन आवर गैलेक्सी, क्योंकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन होती है टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3, कोई भी सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में इस वक्त मौजूद होती तो हम उसको डिटेक्ट कर चुके होते अब तक किसी न किसी तरीके से। टाइप 3 को तो बहुत ईजिली कर चुके होते।
तो फिर इसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा सवाल किसी के दिमाग में आ सकता है कि जो है हो सकता है कि पास्ट के ह्यूमंस तो सिर्फ 200,000 ईयर्स के पीरियड के लिए हैं अर्थ पे, उससे पहले बहुत कुछ चीज़ें होती रही, यूनिवर्स के लिए हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में कोई सिविलाइजेशन हो जो हमारी गैलेक्सी में रहती हो, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका आंसर ये है कि ये शायद रियलिटी टाइप 1 और टाइप 2 सिविलाइजेशन की हो, लेकिन टाइप 3 की ये रियलिटी नहीं हो सकती। ये अगर टाइप 3 पास्ट में होती लेकिन अब वो किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, तो जो है उसकी हमें मेगा स्ट्रक्चर्स स्पेस में फ्लोट करते हुए नजर आ जानी चाहिए थी, जैसे अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आया हमारी अपनी गैलेक्सी में। तभी सेम सिचुएशन टाइप 5 और टाइप 4 के साथ होती। तो हम लोग ये काफ़ी श्योरली कह सकते हैं कि करेंटली हम लोग जो है टाइप मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है अपनी गैलेक्सी में। और अगर हमारी गैलेक्सी में कोई मोस्ट सबसे एडवांस सिविलाइजेशन पास में जो रही होगी वो शायद टाइप 2 रही होगी, उससे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में, एलियन सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में नहीं है। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कुछ काउंटर स्केल्स, यानी कि हमने देखा कि स्केल एलियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जिस स्केल के बिल्कुल लास्ट में हम लोग एडजस्ट करते हैं 0.72, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो हम लोग एक स्केल जब हमारे रिलेटिव से बन रहा है तो स्केल में हम लोग के मिडिल पे होने चाहिए ना, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए कुछ नए स्केल प्रपोज किए गए, जिसमें से एक टोरिनो स्केल है। टोरिनो वैसे बेसिकली कॉमेट के हैजर्डनेस लेवल को चेक करने का स्केल होता है कि वो कितना खतरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए। उसी को बेस बनाते हुए जो है एक यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट में रिसर्च की गई और एक नया स्किल बनाया गया, जो कौन सी सिचुएशन कितनी ज़्यादा वल्नरेबल होती है, अपने अपने आप को किस तरह के डिजास्टर से बचा सकती है। तो उनको फिर 6 टाइप में डिवाइड किया गया, C1 से लेके C6 तक। C1, C2, C3 जो है ये 3 प्लानिटरी सिविलाइजेशन है, एंड C4 इज अ स्टेलर सिविलाइजेशन, C5 गैलेक्टिक, एंड C6 इज अ यूनिवर्सल। C1 सिलेक्शन एक ऐसी सिलेक्शन होती है जो कि अपने आप को छोटे एरिया पे एक्सपेंड करती है, यानी कि जैसे हम मेरे हिस्ट्री में कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो और टैक्सला वगैरह ये C1 सिलेक्शन थी, जो कि बड़ी इजीली वाइप आउट हो सकती है। कोई भी दूसरी सिलेक्शन आके उन पर अटैक कर दिया, कोई छोटा सा नेचुरल डिजास्टर आ गया तो वाइप हो सकती है मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट इज C2 सिलेक्शन, जो कि थोड़े बड़े रीजन पे अपनी सिलेक्शन का एक्सपेंड करती है, जैसे रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, उस तरह की एम्पायर जो हमने हिस्ट्री में देखी। तो ये भी बड़ी इजीली वाइप हो सकती है, लेकिन इस C1 के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल होता है इनको करना, लेकिन स्टिल दे कैन बी वाइप्ड आउट। नेक्स्ट इज C3 सिविलाइजेशन, जो कि ग्लोबल सिविलाइजेशन है, यानी कि अपने पूरे प्लेनेट के ऊपर एक्सपेंड कर चुकी होती है, जो कि करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है। करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो है अपना डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान काम नहीं है कि कोई दूसरी सिविलाइजेशन आती है तो हम पे अटैक नहीं कर सकती, अगर कोई अनलेस कोई एलियन आके कर दे, या फिर कोई कॉमेट अगर आके अर्थ पे हिट करे तो मे बी वी कैन गो एक्सटिंक्ट, वरना ह्यूमंस वुडंट गो एक्सटिंक्ट वेरी इजीली। नेक्स्ट इज अ स्टेलर सिविलाइजेशन और C4 सिविलाइजेशन, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, नॉट पुटिंग ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। मतलब एक आप बास्केट में सारे अपने एग्स नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि हम लोग ह्यूमंस अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स और मून पे सोलर सिस्टम के एक्सपेंड कर चुके होंगे। तो जो है अगर कोई अर्थ से आगे प्लैनेट टकराता भी है या कोई कॉमेट टकराता भी है और अर्थ पे लाइफ खत्म हो भी जाती है, तो स्टिल ह्यूमन विल बी सर्वाइव एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन विल ग्रो टू एक्सपेंड। देन द नेक्स्ट इज C5 सिविलाइजेशन, विच इज गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियली इमोर्टल सिविलाइजेशन हुई। गैलेक्टिक सिविलाइजेशन को खत्म करना बहुत मुश्किल है, जब तक गैलेक्सी है तब तक वो सिविलाइजेशन रहेगी। और गैलेक्सी जो है अभी तक जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग गैलेक्सी एक ही तरीके से खत्म हो सकती है, और वो यही है कि उसका ब्लैक होल बॉम्ब अनस्टेबल हो जाए। अनस्टेबल हो जाएगा तो इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी गैलेक्सी उस वक्त खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसको स्टेबल करने में कामयाब हो गई गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, तो जब तक गैलेक्सी है तब तक वो सिविलाइजेशन रहेगी, और गैलेक्सी हम लोग करंट अंडरस्टैंडिंग जब तक यूनिवर्स है तब तक गैलेक्सीज रहेंगी। नेक्स्ट इज C6 सिविलाइजेशन, जो कि एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन है, और यूनिवर्सल सिविलाइजेशन तो ऑब्वियसली एक मोटर सिविलाइजेशन की जब तक यूनिवर्स है वो तब तक रहेगी। यूनिवर्स जब खत्म होगा तभी खत्म होगी, और जब यूनिवर्स खत्म होगा तो जाहिर सी बात है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग देयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि C6 सिविलाइजेशन एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। नेक्स्ट स्केल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैक्रो डायमेंशनल मास्टरी, जॉन डी बैरो ने प्रपोज किया, और इसने ये स्केल बेस पे बनाया कि ह्यूमंस इस चीज़ को ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव समझते हैं कि हम बड़े से छोटे स्केल की तरफ तरफ करें, ना कि छोटे से बड़े स्केल की तरफ। जैसे कार्डेशियस में देखा, हम प्लैनेट से शुरू हो रहे हैं, फिर सन की तरफ जा रहे हैं, गैलेक्सी एंड सो ऑन। तो जो है जॉन डी बैरो ने सोचा कि हम बड़े स्केल से छोटे की तरफ जाएं, यानी कि हम नॉर्मल स्केल से शुरू हो, फिर सेल्युलर, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, सब एटॉमिक, न्यूक्लियर, इस तरह के स्केल की तरफ जाएं। तो इसने रिवर्स क्लासिफिकेशन करी टाइप 1 माइनस से टाइप ओमेगा माइनस की तरफ। तो उसमें सबसे पहली टाइप जो थी वो टाइप 1 माइनस है, जो कि कैपेबल होती है मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्केल ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि हमारे बराबर की जो स्केल्स हैं उनको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाती है, जो हमने देखा हम काफ़ी पहले ही कर चुके थे। जब ह्यूमन सिलेक्शन स्टार्ट हुई थी हम लोग छोटे स्ट्रक्चर्स बना सकते थे और इस तरह की चीज़ें कर सकते थे, टूल्स बना सकते थे। नेक्स्ट इज टाइप 2 माइनस सिलेक्शन, जो कि कैपेबल होती है जेनेटिक मटेरियल और लिविंग बॉडी को ऑल्टर करने के, यानी कि मेडिकल एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि हम लोग बन चुके हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी में मेडिकल सिस्टम पे बहुत काम हो रहा है। अभी भी इवन की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग अभी तक समझ नहीं पाया, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड दिस। देन द नेक्स्ट इज टाइप 3 माइनस सिविलाइजेशन, जो कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। और ये भी हमने देखा हमारी सोसाइटी में हो चुकी है। हम मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए नए मटीरियल बना सकते हैं, नए केमिकल्स बना सकते हैं, और उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप 4 माइनस सिविलाइजेशन, विच इज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल एटम्स। ये चीज़ अभी हमारी सोसाइटी में अचीव की जा रही है। हम एटम को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल उसको 100% नहीं कर सकते। अभी भी उस पर काम जारी है। और जैसे कि और उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि एटम यूज करते हुए हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ऐसी चीज़ें अभी तक हमारी सोसाइटी में भी बन रही हैं। और कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल लाइफ पे काम शुरू हो गया है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एट द पीक। नेक्स्ट इज टाइप 5 माइनस सिलेक्शन, विच इज कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो सकती है। ऐसी चीज़ें भी वी हैव सीन कि हम लोग कर सकते हैं। फिजन फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको काफ़ी हद तक अपने यूज में भी ला सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी हम लोग नहीं समझ पाए। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है हम लोग इसकी। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं कि स्टेप से भी हम बहुत दूर है। देन देयर इज स्टेप 6 माइनस सिविलाइजेशन, जो कि कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ उनके बारे में जानना शुरू किया। उनके ऊपर काम करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको अपने काम में लेकर आना इज समथिंग विच वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ राइट नाउ। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है हम टाइप 6 माइनस सिविलाइजेशन। और जो है लास्ट वर्ड है टाइप ओमेगा माइनस सिविलाइजेशन। वो एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है कि स्पेस टाइम के बेसिक स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखती है। और एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं कि एक किस तरह करेगी कोई सिविलाइजेशन, और करेगी तो वो क्या कर सकती है। तो अगर इस स्केल को हम लोग अकाउंट में लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन सिलेक्शन है वो समवेयर बिटवीन टाइप 3 माइनस और टाइप 4 माइनस के बीच में लाई करती है। तो दैट्स इट, एंड नाउ आई एम गोना पास द माइक टू साथ। Next. To conclude, in the end, we can see that the human mind is very curious about the unknown universe. And as we know that in this vast universe, billions of light years away, there are billions of planets and billions of solar systems. There might be another planet where there might be beings like us who might be human or might be advanced. कार्डिशेव, टोरिनो और जो माइक्रो डायमेंशनल स्केल है, उन सब का आखिरी मकसद ये है कि वो एक्सप्लेन करें कि बाहर अर्थ के अलावा बाहर क्या कोई सोसाइटी हो सकती है, हमारी तरह कोई सिविलाइजेशन हो सकती है ह्यूमंस की तरह, और या तो क्या ह्यूमंस बस तन्हा है इस दुनिया में और कोई और नहीं है। शायद वो जो है सोसाइटी, they might be in our solar system. They started their life out as a type 0 civilization, type 0 as in their microbes, and as the mitochondria or amoebas. या तो शायद वो type 3 civilization हो सकते हैं जो है way too advanced than us, and we cannot detect them due to some communication gaps. लेकिन जो है ये हमें एक फायदा ये है कि we should be lucky that we should think that we are lucky that even if this universe is vast and there are ends to it, we are able to observe it with to our full heart's content and experience this life as a conscious human being. Next. Okay, till we meet our cosmic friends or foes, thank you. These are references, and if anyone want to ask a question, they can. Thank you. काम तो बहुत अच्छा है बच्चों। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो तुमने टाइप्स को एक्सप्लेन किया, मेन टाइप्स और दूसरी थी एक्सटेंडेड टाइप। जो मेन टाइप है, मेरे ख्याल से इसकी ये हमारी अभी की रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करती मेरे ख्याल से। ये तो बहुत आगे की चीज है ना। यस मिस। जो पिक्चर्स तुमने शेयर की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अगर मतलब ये तो वो चीजें चली गई, तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये हमारे सिर्फ कार्टून्स और उसमें पाई जाती है हमारी मूवीज में। यस मिस।
मिस है ना? स्केल यस, लेकिन जो मैं बताता टाइप हूँ जो मेन टाइप्स थी। जी। तो ये कादरशेव ने जो स्केल डिजाइन किया था ये ह्यूमन के लिए नहीं किया था। हाँ उसने जो है ना ये सोचा कि अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी और ये छोटी छोटी लाइफ फॉर्म होती है वो हम लोग अपने सोलर सिस्टम में तो शायद डिस्कवर थोड़ा कर थोड़ा सकते तो हैं। मुझे और आवाज कट रही समझ में आया, लेकिन एक बहुत नई चीज थी, बहुत है। नई चीज। यस मिस। सही सही टॉपिक तो बहुत